Good morning, all of you. In this part of mechanism of organic reaction, we will discuss about the reaction intermediates. Means what are reaction intermediates? In the intermediates, the term inter means in between. In between means the species which are formed during the reactions, means which are present in between reactant and products, means the species which are neither reactants nor products. तो इंटर मीन्स इन बिटवीन, जो इन बिटवीन है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में बनती हैं, these species called reaction intermediates. And these species have very low half life, they are very reactive, and they are formed by breaking of the bonds, either by homolytic fission or by heterolytic fission. Means the short lived low half life reactive species which are formed during the reaction either by homolytic or the heterolytic fission are called the reaction intermediates. The example of the reaction intermediates are carbocation, carbanion, free radical, carbenes, nitrines, arynes or the benzene. The carbocation, carbanion, free radical, carbenes, in these reaction intermediate, the central atom is carbon, while in case of nitrine, the central atom is nitrogen, while in case of benzene, the atom is carbon 1. So means the species like carbocation, the carbanion, the free radical, and the carbenes, in all these reaction intermediates, they don't have their normal valency. जो कार्बन एटम होता है उसकी नॉर्मल वैलेंसी आपको इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में देखने को नहीं मिलेगी. नॉर्मल वैलेंसी का आखिर मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले इधर देखें, कार्ब हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s1, तो इसकी नॉर्मल वैलेंसी है 1 because the H atom has only one unpaired electron in their valence shell. Like oxygen, 1s2, 2s2, 2p4 is their configuration. In the valence shell, there is only two unpaired electron in the 2p. So the normal valency of oxygen is 2 because the oxygen can form two covalent bond. With the help of lone pair, the oxygen can form the coordinate bond. In case of nitrogen, the configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2p3. And in open form, we can show that 2s has 2 electron in paired state, while in 2p, each of the orbital has one unpaired electron. So there are 3 unpaired electrons in the 2p subshell of nitrogen. So the valency of nitrogen is 3. It can form 3 covalent bond. Similarly, the atomic number of carbon is 6. Their configuration is 1s2, 2s2, 2p2. And in open form, we can show that 2s has 2 electron in paired state, while in 2p, there are 2 unpaired electrons. That is the ground state. While in excited state, one of the 2s electron can jump into the 2p due to the less energy gap. Now, in the excited state, you can see the carbon atom has 4 unpaired electron. Means the carbon atom can form 4 covalent bond. Means these are the normal condition. What are the normal valency of these atom? Means H can form 1 bond, O can form 2 bonds, nitrogen can form 3 bonds, carbon can form 4 bonds. Means these are the valencies of hydrogen, oxygen, nitrogen, and the carbon. As in the reaction intermediate like carbocation, carbanion, free radical, and the carbenes, the central atom is carbon. And these reaction intermediate are formed by either the homolytic or the heterolytic cleavage. So means after the breaking of the bond, means the normal valency of carbon is 4. But after the cleavage of one bond, the valency will become 3. If two bond break, the valency of carbon becomes 2. What it means कि जो आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं उनके अंदर जो सेंट्रल एटम होगा आपका उसकी नॉर्मल वैलेंसी नहीं होगी, उसकी वैलेंसी नॉर्मल से लेस होगी. लाइक कार्बोकेटाइन वैलेंसी आप आगे देखेंगे 3 मिलेगी, कार्बोनाइन वैलेंसी 3 मिलेगी, फ्री रेडिकल्स आप देखेंगे कार्बन की वैलेंसी 3 मिलेगी, कार्बिन्स के अंदर 2 मिलेगी, नाइट्रीन्स जिसमें नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी आप देखिए 3 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आप नाइट्रीन्स के केस में देखेंगे वैलेंसी नाइट्रोजन की 1 दिखाई देगी आपको.
तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोकेटाइंस को। तो व्हाट आर कार्बोकेटाइंस? तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन को देखते हैं कि बनता कैसे, हाउ द कार्बोकेटाइन आर जनरेटेड। इन दैट एग्जांपल there occurs the heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage means one of the atom takes away both the electron. One of the atom takes away both the electron. देखो अपने फुल एरो दिखाया है. Movement of two electrons are shown by the full curved arrow. Means the atom which has deficiency of electron. देखो जो लेफ्ट साइड में जो आपका कार्बन एटम है उसकी वैलेंसी कम हो गई. देखो 3 वैलेंसी हो गई. प्लस उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, सो इट एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज. दैट here called carbocation. आप इसे कहेंगे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव स्पीसीज called cation. So here it is called carbocation. While the other species thus formed is called the carbanion. क्योंकि इस कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, खुद का इलेक्ट्रॉन है, एक अनदर कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सो दैट कॉल्ड नेगेटिव चार्ज हियर. कई बार स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं कि सर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन तो 2 दिखा दिया आपने, तो 1 नेगेटिव चार्ज क्यों? कार्बन के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको पेयर स्टेट में दिख रहे हैं यहाँ पे, आउट ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसी कार्बन का है, और जो एक ही तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है इस कार्बन के पास, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो एक नेगेटिव चार्ज. एंड दीज स्पीसीज कॉल्ड कार्बेनायन. तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज जो अभी आपने देखा यहाँ पे 2 स्पीसीज आपकी बन गई, एक कार्बोकेटाइन और एक कार्बेनायन. तो व्हाट आर कार्बोकेटाइंस? कार्बोकेटाइन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंसी 3 है, तो मींस इट इज ट्राईवैलेंट. तो सिर्फ ये 2 बातें अगर आप जो मेन डेफिनेशन है रिएक्शन इंटरमीडिएट की जो आपको दिख रही है उसमें आप ऐड कर दें तो डेफिनेशन कार्बोकेटाइन की बन जाएगी. तो देखिए आप डेफिनेशन, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल और ले लें हम एल्काइल हैलाइड का. एज देयर इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन. जो क्लोरीन है, जो Cl है, इट विल अब्स्ट्रैक्ट बोथ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. दोनों इलेक्ट्रॉन देखो क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे, तो Cl नेगेटिव निकल जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो आपके कार्बोकेटाइन फिर से जनरेट हो गए. तो व्हाट आर कार्बोकेटाइन नाउ? द पॉजिटिवली चार्ज्ड, ट्राईवैलेंट. आगे भी वही डेफिनेशन लिख दे जो आपने ऊपर लिख रखी थी. द पॉजिटिवली चार्ज्ड, ट्राईवैलेंट, शॉर्ट लिव्ड, लो हाफ लाइफ रिएक्टिव स्पीसीज व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय. यहाँ पे कौन सी क्लीवेज लिखेंगे आप? कौन सी क्लीवेज से आपके कार्बोकेटाइन बने हैं? हेटेरोलिटिक फिशन हुआ है यहाँ पे, होमोलिटिक क्लीवेज नहीं हुआ, हेटेरोलिटिक फिशन. सो आपने क्या लिखा डेफिनेशन के लास्ट में? बाय हेटेरोलिटिक फिशन आर कॉल्ड द कार्बोकेटाइन. ये डायग्राम बन गया आपके कार्बोकेटाइन का. जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ आपको 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं. जो 3 बॉन्ड्स हैं आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी है. अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो 3 बॉन्ड्स बच गए, हर बॉन्ड के अंदर आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अरेंज देमसेल्फ around the central atom in such a way that there occurs the minimum repulsion between them. तो वो जो शेप आ जाती है ताकि इनके बीच रिपल्शन कम से कम हो, प्लेनर स्ट्रक्चर है ये. तो 120 डिग्री के एंगल के ऊपर तीनों जो बॉन्ड है अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं. और जो एक ऑर्बिटल क्या रह गया बोलो यहाँ पे? वैकेंट. वन वैकेंट ऑर्बिटल इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम. द बॉन्ड एंगल इज ऑफ 120 डिग्री. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला आप निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. सेंट्रल एटम कार्बन के पास सिर्फ 3 बॉन्ड है, तीनों सिग्मा बॉन्ड है, तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 3 का मतलब sp2, 1s और 2p. वो आप आगे भी देखेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बेनाइन. अभी आपने देखा कार्बेनाइन कैसे जनरेट हुए, वो भी हेटेरोलिटिक फिशन से ही जनरेट होते हैं. कार्बेनाइन के ऊपर आपने ये रिएक्शन नंबर 1 दिख रही है जिसमें कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है? यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज है. ये स्पीसी जो आपकी बनी थी यहाँ पे, ये स्पीसी है आपकी. कार्बेनाइन आपके और भी डिफरेंट रिएक्शन में जनरेट हो सकते हैं. हम एग्जांपल लेते हैं उसका. फॉर एग्जांपल हमने ये एल्काइल हैलाइड सी लिए, लेकिन ऐसे एल्काइल हैलाइड लिए जिसके अंदर एक तो वो कार्बन है जिसके ऊपर Cl अटैच है, दैट कॉल्ड द अल्फा कार्बन और द कार्बन एटम नंबर 1. इसे आप अल्फा भी कह सकते हैं, और आईपैक नेमिंग के अकॉर्डिंग आप इसे कार्बन एटम नंबर 1 कहेंगे. और सेकंड कार्बन जिसे आप बीटा पोजीशन कह सकते हैं. अगर हम इसके अंदर एक ऐसी स्पीसी डाल दें जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी हो या जिसके पास लोन पेयर हो, जो बेस का काम करे, जैसे अभी हमने शो किया, तो बेस अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बीटा पोजीशन के ऊपर जो H है उसको इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट किए देखो, तो जिसकी वजह से H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, तो कार्बन जो है बीटा पोजीशन वाला कार्बन वो अपना इलेक्ट्रॉन भी रखेगा, H का इलेक्ट्रॉन भी उसी के पास रह जाएगा. देखो हमने फुल एरो से शो किया.
तो जो स्पीसी बनी आपने क्या देखा कि जो बीटा पोजीशन वाला कार्बन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक H का इलेक्ट्रॉन है, तो 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, स्पीसी 10 फॉर्म्ड कॉल्ड द कार्ब एनायन। आप ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? कार्ब एनायन कहते हैं। तो मींस ये कार्ब एनायन आपके जनरेट हो गए यहाँ पे। तो कार्ब एनायन कब जनरेट हुए? एल्काइल हैलाइड में। जो बीटा पोजीशन के ऊपर जो H है उसको अगर बेस कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसी अगर अपने इलेक्ट्रॉन H को दे दे तो बेस, कोई स्पीसी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट H को छोड़ के कार्बन को कर देती तो आप उसे न्यूक्लियोफाइल कहते। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। और एग्जांपल देखते हैं हम, आप एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर देखते हैं कार्बोनिल जो ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप से जो अगली पोजीशन है आईपैक नेमिंग के अनुसार नंबर 2 और उसे आप अल्फा पोजीशन कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, वहां पे अगर हम उसी टाइप से कोई ऐसी स्पीसी डाले जो बेस का काम करे, जो अपने इलेक्ट्रॉन H को दे दे, तो फिर H क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट कर देगा, छोड़ देगा। तो जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन भी रखेगा, H का इलेक्ट्रॉन भी उसके पास चला जाएगा। मीन्स कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक खुद का एक H का। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्पीसी 10 फॉर्म्ड कोल्ड कार्ब एनायन, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। जो स्ट्रक्चर है, जो स्पीसी है आपकी जो बनी, ये कार्बोनाइन। अब बोलो कैसी स्पीसी है? जैसे अभी आपने डेफिनेशन लिखी थी कार्बोकेटाइन की, वहां पे आपने डेफिनेशन में लिखा था द पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? द नेगेटिवली चार्ज्ड। बॉन्ड कितने हैं कार्बोनाइन के अंदर? आपके 3 ही बॉन्ड है, देखो आप डायग्राम आपके सामने। तो ट्राइवेलेंट, आगे वही सेम बातें आप लिख देंगे, शॉर्ट लिव्ड, लो हाफ लाइफ, रिएक्टिव स्पीसीज विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय हेटेरोलिटिक फिशन। ये भी हेटेरोलिटिक फिशन से ही बनी है, because both of the 2 electrons are shifted towards one of the atom। तो कार्बोनाइन, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्पीसी है, आपने जैसे अमोनिया की स्ट्रक्चर कभी पढ़ी होगी जिसमें नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होते हैं, 3 H के साथ अटैच एक लोन पेयर होता है, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसकी। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड एंगल जो होगा वो आपका लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, लाइक दैट ऑफ अमोनिया। यहाँ पे इन्वर्जन प्रोसेस चल जाती है, मींस ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर, तो ये कन्वर्ट हो जाती है, देखो इक्विलिब्रियम में रहती है दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर, तो दैट कॉल्ड इन्वर्जन प्रोसेस। जैसे अमोनिया में भी चलती है इन्वर्जन प्रोसेस, तो इसको दोनों फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, फ्री रेडिकल्स, मींस ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं ये आपकी। जैसे हमने एग्जांपल लिया, इन विच each of the atom takes away their own electron in presence of light, there occurs the homolytic fission। होमोलिटिक फिशन हुआ लाइट की प्रेजेंस में, और जो दोनों कार्बन थे जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, जो इक्वल शेयरिंग वाला बॉन्ड है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ईच ऑफ द कार्बन एटम टेक्स अवे देयर ओन इलेक्ट्रॉन एंड दस एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फॉर्म्ड। कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बच गए कितने? 3, तो वैलेंसी 3 ही है। और कार्बन के ऊपर हमने एक डॉट दिखाई, तो ऐसी स्पीसीज को फ्री रेडिकल कहेंगे। तो जैसे आपने डेफिनेशन लिखी कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन की, ऐसे ही डेफिनेशन आपकी फ्री रेडिकल की बन जाएगी। लेकिन ये स्पीसी आपकी, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल स्पीसी है। तो आप क्या लिखेंगे? द न्यूट्रल। वैलेंसी वही 3 है, तो आप लिख देंगे ट्राइवेलेंट। और बना कैसे है ये? पहले आप लिखते तो हेटेरोलिटिक फिशन, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन में ये बना है होमोलिटिक फिशन से। तो होमोलिटिक दो चेंज जो हुए डेफिनेशन में, वो क्या हुए आपके? न्यूट्रल आ गया। द न्यूट्रल ट्राइवेलेंट शॉर्ट लिव्ड लो हाफ लाइफ रिएक्टिव स्पीसीज विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय द होमोलिटिक फिशन आर कॉल्ड द फ्री रेडिकल्स। आप इन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। सेंट्रल एटम के चारों तरफ 3 ही बॉन्ड है, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग they will arrange themselves in such a way that there occur the minimum repulsion, means the shape will be like that of the carbocation, that is the trigonal planar, bond angle will be of 120 degree। नेक्स्ट स्पीसी आपकी आ गई कार्बीन्स। जो कार्बीन्स हैं ये कैसे जनरेट होती हैं, कैसे बनती हैं, पहले हम उनको देखते हैं। हमने एल्काइल हैलाइड लिया, तो वो कार्बन जिसके ऊपर आपका Cl अटैच है, तो उसे आप अल्फा कहेंगे, दैट पोजीशन इज कॉल्ड अल्फा। तो ये अल्फा पोजीशन है, देखो आपकी। अब हमने देयर आर 2 वेज फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड हेयर। फॉर एग्जांपल, अगर हम बेस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करें, जैसे OH नेगेटिव हमने लिया, जो नेगेटिवली चार्ज ये स्पीसी अपने इलेक्ट्रॉन H को दे, तो बेस H को ना दे, कार्बन को दे दे, तो फिर उस वक्त ये स्पीसी कहलाती न्यूक्लियोफाइल। हमने ये मान के चले यहाँ पे कि OH नेगेटिव ने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो H को दिए, तो फिर क्या होगा? H अपना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कर देगा, जो C और H के बॉन्ड
के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन अपनी तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसलिए Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। तो जो स्पीसी देखो यहाँ पे बनी वो क्या बनी, कार्बन के 2 बॉन्ड टूट गए, एक तो C और H के बीच का बॉन्ड टूटा हाइड्रोलिटिक क्लीवेज से, तो उस ऑर्बिटल के अंदर जो C और H के बीच जो ऑर्बिटल था, जो बॉन्ड था, उस ऑर्बिटल के अंदर कार्बन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे आ गए। दूसरा ऑर्बिटल वैकेंट हो गया कार्बन का, क्योंकि Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो इसलिए जो ये स्पीसी बनी इसको आप कार्बीन कहेंगे। ये डाइवेलेंट स्पीसी है, देखो 2 ही बॉन्ड बच गए कार्बन के, क्योंकि 2 बॉन्ड तो टूट गए, एक CH बॉन्ड टूटा और दूसरा आपका CCl बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इसको कार्बन को हम सिंगलेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे पहले नेट स्पिन की वैल्यू देखेंगे। कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ, दूसरे क्योंकि रिवर्स स्पिन तो माइनस हाफ, तो टोटल नेट स्पिन क्या हो गई, प्लस हाफ प्लस में माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला होता है 2s + 1, तो s की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 × 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 है आंसर। तो इसलिए सो दैट कार्बन हियर कॉल्ड द सिंगलेट कार्बन। अदर वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इज कि मान लीजिए यही हमने एल्काइल हैलाइड लिया और इसमें हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन की और आपका होमोलिटिक क्लीवेज हमने कर दिया, मींस आपका कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया CH बॉन्ड के अंदर और H मान लीजिए अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, देखो ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज इस टाइप से। ऐसे ही CCl बॉन्ड के अंदर Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया, देखो हमने हाफ कर्ड एरो से शो किया है। तो जो स्पीसी बनी कैसे बनी, C और 2 ही बॉन्ड बच गए कार्बन के 2H के साथ, एक तो CH बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो कार्बन का जो एक ऑर्बिटल है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का जो दूसरा ऑर्बिटल है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि CH वाला बॉन्ड है वहां पे भी कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन रह गया। जो CCl बॉन्ड है उसके अंदर भी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रह गया, Cl एक ही इलेक्ट्रॉन लेके गया है। तो इसलिए जो आपकी साइड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं यहाँ पे वो क्या हुआ, देखो H अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके देखो चला गया, देखो अपना अपने 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 इलेक्ट्रॉन, इसलिए H और Cl के बीच एक बॉन्ड गया बन गया, तो ये आपके साइड प्रोडक्ट है, -HCl निकल जाता है। और जो स्पीसी बनी वो कौन, कार्बीन। why they called triplet carbene? in the same way you can calculate the value of s spin, net spin की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक जैसी है तो प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लिसिटी आप निकालेंगे 2s + 1, तो s की वैल्यू आपने 1 पुट की तो 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 3, आंसर इज 3, सो हियर कॉल्ड द ट्रिपलेट कार्बन। तो अब डेफिनेशन बनेगी आपकी कार्बीन्स की, चाहे वो सिंगलेट कार्बीन हो चाहे ट्रिपलेट हो, बोथ आर डाइवेलेंट स्पीसी, बोथ आर न्यूट्रल वन। आपके कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इन बोथ द केसेस। तो द न्यूट्रल डाइवेलेंट short lived low half life reactive species which are formed during the reaction by होमोलिटिक, जैसे नीचे वाला जो केस है ट्रिपलेट कार्बन वो होमोलिटिक क्लीवेज से बनी है, और हिट्रोलिटिक जो सिंगलेट कार्बन बनी है वो आपके हिट्रोलिटिक क्लीवेज से बनी है। तो मींस कार्बन आर फॉर्म्ड बाय बोथ होमोलिटिक एंड द हिट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज से जो बनती है वो आपकी ट्रिपलेट कार्बन है, जो हिट्रोलिटिक क्लीवेज से जो बनती है वो आपकी सिंगलेट कार्बन है। तो ये डायग्राम हो गया ट्रिपलेट कार्बन का, जैसे आपको पहले हमने बता ही दिया, और ये सिंगलेट कार्बन्स। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, दे कॉल्ड नाइट्रीन्स और द इमिडोजेंस। अब हम एग्जांपल लेंगे पहले, जैसे अमोनिया की स्ट्रक्चर आप जानते हैं पिरामिडल होती है, तो हमने ये रियल स्ट्रक्चर ड्रा नहीं की, इसमें हमने ये दिखाया कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड्स बनाता है नाइट्रोजन। जो 3 ग्रुप्स अटैच है उनमें से एक हमने H लिख दिया है, कोई R ग्रुप है नहीं, R वो R की वैल्यू आप H भी पुट कर सकते, कोई और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। एक एटम हमने Cl लिया, क्योंकि हम नाइट्रीन्स को बनना शो करेंगे, यहाँ पे नाइट्रीन्स बनती कैसे हैं। तो सबसे पहले हमने वही केस लिया बेस की प्रेजेंस में, लाइक जैसे हमने कार्बीन्स 2 फॉर्म्स में बनाई थी सिंगलेट ट्रिपलेट, ऐसे ही नाइट्रीन्स भी 2 ही तरह की होती है, एक सिंगलेट एक ट्रिपलेट। अब देखेंगे वो कैसे। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हमने की, तो ये बेस का काम क्यों कर रहा है, इफ the negatively charged species donate their electron to H atom then it is called base. So here the OH negative are donating their electron pair to the H, so OH negative ion here called the base. तो ये बेस का काम कर रहे हैं। तब दोनों इलेक्ट्रॉन H को इलेक्ट्रॉन मिल गए OH नेगेटिव से, तो H अपने इलेक्ट्रॉन अब लेफ्ट कर देगा, नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये लोन पेयर की फॉर्म में, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करता है Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो मींस नाइट्रोजन के
जो टोटल 3 बॉन्ड्स थे उसमें से 2 बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। एक तो N और H के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो गया, एक N और Cl के बीच का भी बॉन्ड क्लीवेज हो गया, हुआ हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो उससे हुआ क्या, देखो नाइट्रोजन का एक ही बॉन्ड बचा, नाइट्रोजन का सिर्फ R से बॉन्ड अटैच है, एक लोन पेयर पहले से था नाइट्रोजन के पास। N और H के बीच का जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ है तो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, H का भी ले लिया, तो देखो एक लोन पेयर और बन गया। एक ऑर्बिटल खाली दिखाया है, जिधर से Cl निकला था राइट साइड में, उधर का आप ऑर्बिटल देखें, हमने वैकेंट दिखा रखा है क्योंकि उस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं। क्यों? क्योंकि Cl ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन भी और नाइट्रोजन का भी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वो चला गया था। साइड प्रोडक्ट उसी टाइप से निकलेगा, एक तो H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव HCl। तो ये जो ये आपकी स्पीसी बनी, इसे नाइट्रीन कहते हैं। इसमें ये मोनोवेलेंट स्पीसी, आप देखें नाइट्रोजन का सिर्फ एक बॉन्ड बच गया, सो कॉल्ड मोनोवेलेंट। कोई चार्ज भी नहीं है तो न्यूट्रल भी है। जैसे कार्बीन्स आपकी न्यूट्रल थी, डाइवेलेंट थी, लेकिन ये न्यूट्रल है और मोनोवेलेंट है। और ये क्लीवेज हुआ, ये कैसा हुआ है क्लीवेज, ये आपका हेटेरोलिटिक क्लीवेज है। ऐसे ही मल्टीप्लिसिटी अगर निकालें तो उसी बेसिस के ऊपर इस नाइट्रीन का नेम आप देख पाएंगे। देखो स्पिन कितनी आएगी, दोनों ही ऑर्बिटल्स के अंदर आप देख रहे हैं लोन पेयर की फॉर्म, पेयर की फॉर्म में है, तो एक की स्पिन प्लस हाफ तो दूसरे की माइनस हाफ इन बोथ द ऑर्बिटल्स। तो इसलिए एस की वैल्यू 0 आ गई। तो मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला इज 2s + 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 0, so the answer will be 2 multiplied by 0 plus 1 is equal to 1, so here called the singlet nitrene। हम अब दोबारा से इसी रिएक्टेंट को लेते हैं और होमोलिटिक क्लीवेज देखेंगे। लाइट की प्रेजेंस में मान लीजिए क्लीवेज हुआ, तो क्या हुआ, N और H के बीच का बॉन्ड भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, बीच में से बॉन्ड इक्वली टूट गया कि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और हाइड्रोजन अपने। ऐसे ही नाइट्रोजन Cl के बीच भी बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, देखो ऐसे। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पहले से था, एक R ग्रुप बच गया क्लीवेज के बाद, और नाइट्रोजन के जो 2 ऑर्बिटल है राइट और लेफ्ट, उन दोनों ऑर्बिटल्स में नाइट्रोजन के पास सेपरेट अनपेड इलेक्ट्रॉन है। N और H के बीच का जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ उसमें नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, H अपना ले गया। N और Cl के बीच का बॉन्ड जो क्लीवेज हुआ, Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, N के पास अपना रह गया। तो देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए। तो नेट स्पिन की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो क्या आएगी, क्योंकि देखो जो पेड फॉर्म में लोन पेयर वहां पे तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो गया, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को देखे तो प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो 2s + 1 जो मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे वो आंसर क्या आ जाएगा, 1 वैल्यू पुट किया आपने s की, तो 2 multiplied by 1 + 1 is equal to 3, as there is 3 so it is called triplet nitrene। तो जैसे आपके कार्बीन्स 2 टाइप की थी, सिंगलेट और ट्रिपलेट, ऐसे ही नाइट्रीन्स भी 2 टाइप की, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब डेफिनेशन क्या होगी नाइट्रीन्स और द इमिडोजेंस की, न्यूट्रल ही है। जैसे आप कार्बीन की डेफिनेशन को देखें, पूरी डेफिनेशन एज सच रहेगी कार्बीन जैसी। बोलो डिफरेंस कहाँ, सिर्फ जहां पे डाइवेलेंट थी आपकी कार्बीन्स, ये मोनोवेलेंट है, अदरवाइज कंप्लीट डेफिनेशन विल बी सेम। मींस ये दोनों होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक दोनों क्लीवेज से ही बनी है। सो द न्यूट्रल डाइवेलेंट शॉर्ट लिव्ड लो हाफ लाइफ रिएक्टिव स्पीसीज व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय होमोलिटिक और द हेटेरोलिटिक क्लीवेज और द फिशन आर कॉल्ड द नाइट्रीन्स। ये डायग्राम हम पहले ही देख चुके हैं, ये ट्रिपलेट नाइट्रीन का डायग्राम है, ये सिंगलेट नाइट्रीन का डायग्राम है। अब नेक्स्ट हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को हम देखते हैं, दिस कॉल्ड बेंजाइन। नाम से पता चलता है बेंज, बेंजीन प्लस YNE मींस ट्रिपल बॉन्ड। एक ऐसी स्ट्रक्चर जो बेंजीन जैसी होगी और जिसमें एक जगह कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा डबल की जगह। बेंजीन की स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं जिसमें डबल सिंगल रिंग की स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन किसी एक जगह डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सो कॉल्ड बेंजाइन, बेंजाइन। ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल स्पीसी है। अब बनती कैसे आप देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, वैसे ही हमने बेस लिया सोडियम एमाइड, सोडियम एमाइड कहते हैं आप NaNH2 को, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए, देखो। तो उससे क्या होगा, जो बेंजीन रिंग वाला जो कार्बन है और जो H के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन भी H अपने पास नहीं रखेगा अपना, क्योंकि NH2 ने पीछे से इलेक्ट्रॉन H को दे दिए। तो जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है CH बॉन्ड के बीच, वो दोनों के दोनों किसके पास रह जाएंगे, कार्बन के पास। तो ऐसा होने से क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब कार्बन देखो यहाँ पे डोनेट करें, देखो ये डोनेट करेगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ये डोनेट करेगा, देखो ऐसे 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 यहाँ पे ओवरलैपिंग। लेकिन किसके साथ करे ये ओवरलैपिंग, तो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, देखो यहाँ से
नेबरिंग कार्बन एटम से। तो उससे देखो हुआ क्या, हम एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें देखो वो कार्बन जिसके ऊपर H अटैच था, हमने उस ऑर्बिटल के अंदर देखो 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये, क्योंकि जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो आप उसमें देख सकते हैं जो कार्बन है C और H के बीच ये सिग्मा बॉन्ड है, देखो यहाँ पे ये जो नीचे बॉन्ड है ये भी सिग्मा है, जो ये 2 बॉन्ड है इनमें से एक सिग्मा है और एक पाई है, तो टोटल 3 सिग्मा है इस कार्बन के। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। तो जो बेंजीन रिंग होता है उस बेंजीन रिंग के अंदर आपके हर कार्बन की बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एवरी कार्बन एटम हैज द हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो इसलिए हमने दिखाया C और H के बीच का जो बॉन्ड है, उस जो बॉन्ड था उसके जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, ये दोनों जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है। C और Cl के बीच का जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ, वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन ही Cl अपने साथ विड्रॉ कर लिए उसने, तो इसलिए वो ऑर्बिटल वैकेंट रह गया, वो भी sp2 ऑर्बिटल है जो वैकेंट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है दोनों, एंड दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में नहीं है, आप ध्यान से देख सकते हैं दोनों पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। तो इसलिए जो इनके बीच जो ओवरलैपिंग होती है वो जैसे और पाई बॉन्ड्स जब बनते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की हेल्प से बनते हैं पाई बॉन्ड, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है ये और पाई बॉन्ड जैसा नहीं है, क्योंकि वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इन द सेम प्लेन होते हैं जब उनके बीच साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। These two sp2 hybrid orbitals are not present in the same plane, तो इनके बीच में जो लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, ये और पाई बॉन्ड जैसे नहीं है। तो अब देखो ओवरलैपिंग हुई, लेटरल ओवरलैपिंग, एक और बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, स्ट्रक्चर दस फॉर्म्ड कॉल्ड बेंजाइन। स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे यहाँ पे, ये बेंजाइन स्ट्रक्चर कहलाती है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल स्पीसी है ये आपकी। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन होती हैं, वो स्पीसी जो ना तो रिएक्टेंट होती ना ही प्रोडक्ट, विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, दे आर वेरी रिएक्टिव, लो हाफ लाइफ, दे आर फॉर्म्ड इधर बाय होमोलिटिक और द हिट्रोलिटिक फिशन। आपने देखा ये बेंजाइन जो स्पीसी बनी है ये भी कैसे जनरेट हुई, क्लोरोबेंजीन से आपने देखा, बाय द हिट्रोलिटिक क्लीवेज। हिट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ था, देखो बेस था आपका NH2 नेगेटिव, उसने इलेक्ट्रॉन H को दिए, उसके नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर से Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तभी आपकी ये स्पीसी बनी आपकी बेंजाइन। तो हिट्रोलिटिक क्लीवेज से ही बनी है, तो आप डेफिनेशन देखेंगे स्पीसी न्यूट्रल है, ये एरोमेटिक है, ये क्योंकि बेंजीन रिंग एरोमेटिक है तो ये एरोमेटिक स्पीसी है। सो द न्यूट्रल एरोमेटिक शॉर्ट लिव्ड लो हाफ लाइफ रिएक्टिव स्पीसी हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय हिट्रोलिटिक फिशन आर कॉल्ड द बेंजाइन, आप उसे बेंजाइन कहते हैं। अब जितनी भी ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है इनकी जो आपने बातें देखी इनको हम टेबुलर फॉर्म के अंदर इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। अब तो कौन कौन से आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनैन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन। डेफिनेशन हम पहले ही देख चुके हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर, वो भी हम देख चुके हैं, लेकिन दोबारा से ड्रा करते हैं। देखो कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर हमने रीड की थी, जिसमें आपकी ट्रायगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ट्राइवेलेंट स्पीसी है ये आपकी। कार्बेनाइन, इसके अंदर आपकी स्पीसी की शेप कैसी होगी, पिरामिडल लाइक दैट ऑफ अमोनिया, बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। फ्री रेडिकल, इसकी भी ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन के ऊपर। कार्बीन्स ये दो टाइप की हो सकती है, ट्रिपलेट और द सिंगलेट कार्बीन, अभी आपने देखा था। जो कार्बीन्स है आपकी ट्रिपलेट कार्बीन, उसके अंदर 2 सेपरेट ऑर्बिटल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिसकी वजह से ये आपकी अनस्टेबल तो दोनों है, ट्रिपलेट कार्बीन भी सिंगलेट कार्बीन भी, लेकिन आउट ऑफ दीज टू अनस्टेबल स्पीसीज विच वन इज स्लाइटली मोर स्टेबल, the triplet carbene is slightly more stable than that of the singlet carbene, because in the triplet carbene the 2 electrons are present in the separate orbitals and thus there will be the less electron repulsion, while in case of the singlet carbene the 2 electrons are present in the same orbital, causes the more electron repulsion, more electronic repulsion, which causes the instability, which causes the more instability in the singlet carbene। तो जो बॉन्ड एंगल है आपका ट्रिपलेट कार्बीन के अंदर वो आपका 180 डिग्री का होगा, लीनियर स्ट्रक्चर है। सिंगलेट कार्बीन वी शेप स्ट्रक्चर है इसकी, बॉन्ड एंगल अगर यहाँ पे लोन पेयर की जगह सिंगलेट कार्बीन में यहाँ पे कोई एटम होता
तो आपकी स्ट्रक्चर कैसे होती, जैसे कार्बोकेटायन में देखो 3 एटम है कार्बन के चारों तरफ, 3 बॉन्ड है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर वहां पे होता तो ट्रायंगुलर प्लेनर होती, लेकिन ट्रायंगुलर प्लेनर होती तो बॉन्ड एंगल भी 120 का होता। तो अब ये लोन पेयर क्या करता है, दैट लोन पेयर पुशेस दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इनर साइड। देखो ये रिपल्शन ज्यादा शो करता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल 120 का होना चाहिए था उससे कम हो जाता है। जो HCH बॉन्ड है इसका बॉन्ड एंगल 120 से कम हो जाएगा ड्यू टू दैट रिपल्शन, ड्यू टू दैट ग्रेटर रिपल्शन फ्रॉम द लोन पेयर टुवर्ड्स द बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बिकम्स लेस देन 120 डिग्री। ऐसे ही आपकी नाइट्रीन्स भी 2 टाइप की हैं, ट्रिपलेट नाइट्रीन एंड द सिंगलेट। और उसी टाइप से जो आपकी ट्रिपलेट नाइट्रीन्स है दे आर स्लाइटली मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द सिंगलेट नाइट्रीन, क्योंकि ट्रिपलेट के अंदर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेपरेट ऑर्बिटल which results in the lesser electron repulsion, while in case of the singlet nitrines these all electrons are present in the paired state and thus there will be the more electron repulsion. So the triplet carbene are slightly more stable than that of the singlet nitrine, otherwise both are unstable. जैसे हम पहले से जानते हैं these all are reaction intermediates and these all reaction intermediate are unstable species. They can never be isolated. हम इनको आइसोलेट नहीं कर सकते, हम इनको अलग करके किसी बीकर में कंटेनर में डाल के नहीं रख सकते, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते विद सम एक्सेप्शंस। आगे जाके हम पढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। इसके बाद ये बेंजाइन की स्ट्रक्चर हो गई, जिसमें बेंजाइन में हमने देखा था कि जो आपके जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, और जिसमें एक ऑर्बिटल के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास है ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन, दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, दे विल ओवरलैप लेटरली, वो लेटरली ओवरलैप करते हैं, और इसीलिए जो नॉर्मल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये उसका पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि ये उसके प्लेन में नहीं है। वहां पे जो ओवरलैपिंग होती है, जो नॉर्मल पाई बॉन्ड बनता है उसकी, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से बनता है। आप ध्यान रखें, नॉर्मल जो पाई बॉन्ड बनता है, द नॉर्मल पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग बिटवीन द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बना है, जो तीसरा बॉन्ड बना है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग बिटवीन द two sp2 hybrid orbitals which are not present in the same plane. They are present, their overlapping is lateral overlapping. अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। कार्बोकेटाइन, सिंपल बात आप ध्यान रखिए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं कार्बोकेटाइन में, तो सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 + 0 = 3 sp2। कार्बोनाइन में देखेंगे 3 बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फ्री रेडिकल्स में देखेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स हैं, तो तीनों सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होते हैं, तो 3 + 0 0, कोई लोन पेयर नहीं, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है, तो 3 + 0 = 3 sp2। कार्बीन्स में आप देखें, ट्रिपलेट कार्बीन के केस में देखेंगे तो 2 बॉन्ड है आपके, दोनों सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्योंकि सिग्मा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वो आपके लोन पेयर नहीं है, दे आर अनपेयर्ड, तो लोन पेयर देखने होते हैं हमें, तो सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए, लोन पेयर कोई नहीं, तो 2 + 0 = 2 sp हाइब्रिडाइजेशन, शेप इज लीनियर 1। अगर आप सिंगलेट कार्बीन में देखेंगे तो 2 बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए, लेकिन एक लोन पेयर है, ये पेयर की फॉर्म में आपके सिंगलेट कार्बीन के अंदर, तो 2 + 1 = 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, और शेप वी शेप है। ऐसे ही अगर आप बात करें नेक्स्ट आपके ट्रिपलेट नाइट्रीन की, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही आपका सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो 1 + 1 = 2 sp हाइब्रिडाइजेशन होगी नाइट्रोजन एटम की। अगर आप सिंगलेट नाइट्रीन में देखें तो एक ही है सिग्मा बॉन्ड, तो प्लस में 2 लोन पेयर हैं, तो 1 + 2 = 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और आपके बेंजाइन के अंदर तो हमने बताया ही था, चाहे ट्रिपल बॉन्ड दिखता हो, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हाइब्रिडाइजेशन आपको लगती ऐसे है कि जैसे कार्बन है, वो कार्बन जिसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होनी चाहिए, sp होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया, आपको बताया कि जो ट्रिपल बॉन्ड बना है दैट only due to the lateral overlapping in between the sp2 hybrid orbital, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है यहाँ पे। शेप कार्बोकेटाइन की ट्राइगोनल प्लेनर, कार्बोनाइन की पिरामिडल, फ्री रेडिकल ट्राइगोनल प्लेनर होगी फ्री रेडिकल्स की। कार्बीन्स की जो ट्रिपलेट कार्बीन है उसकी स्ट्रक्चर लीनियर, और जो आपकी सिंगलेट कार्बीन है उसकी बेंट शेप हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, बॉन्ड एंगल जब आप देखते हैं तो वो तभी होता है जब आपके जो टोटल नंबर ऑफ जो एटम है वो 2 से ज्यादा हो, तभी आप ये बात बता सकते हैं कि जो आप शेप की बात कर रहे हैं।
उसके बाद बात आ जाती है बॉन्ड एंगल, वो आपको दिख ही रहा है, कार्बोकेटाइन में 120, कार्बन में लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। लोन पेयर की वजह से जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर मीथेन होता जहां पे लोन पेयर है कार्बन आयन में, वहां पे कोई बॉन्ड होता तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स का ही होता। लेकिन ड्यू टू दैट रिपल्शन फ्रॉम लोन पेयर, जो लोन पेयर क्योंकि सबसे मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे कॉजेस द मैक्सिमम रिपल्शन। तो लोन पेयर आपके बॉन्ड पेयर को अंदर की तरफ पुश करता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस and becomes less than 109 डिग्री 28 मिनट्स। फ्री रेडिकल के अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। कार्बीन्स, ट्रिपलेट कार्बिन में आपको जैसे पहले ही बताया जा चुका है 180 डिग्री, और सिंगलेट कार्बिन के अंदर लेस देन 120 डिग्री ड्यू टू द सेम रीजन, दैट इज द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। आपके यहाँ पे बॉन्ड ही एक है तो यहाँ पे हम बॉन्ड एंगल की बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बन जो सेंट्रल एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ आपको सिर्फ 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो द टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन कार्बोकेटाइन इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ कार्बन एन 3 तो बॉन्ड्स हैं, तो 3 2 जा 6 प्लस एक लोन पेयर है, तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री रेडिकल में 3 तो बॉन्ड्स हैं, तो 3 2 जा 6, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है, तो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन द फ्री रेडिकल्स। कार्बीन्स में अगर आप देखें तो 2 बॉन्ड है दोनों ही केसेस में, वेदर इट इज द ट्रिपलेट और द सिंगलेट कार्बीन। तो 2 बॉन्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और हैं एक्स्ट्रा जो दिख रहे हैं आपको ट्रिपलेट और सिंगलेट दोनों के अंदर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे नाइट्रीन्स में देखें एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके चारों तरफ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो 4 है। तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स। आपके जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। अगर जो आपको कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर दिख रही है, जो आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन है, कार्बन के ऊपर चारों तरफ 3 H लगे हुए हैं, अगर हम किसी भी एक H को रिप्लेस कर दें R ग्रुप से, किससे? R ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप से, मींस कोई कार्बन अटैच कर दें एक और, तो दैट कॉल्ड द प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जैसे आप देख पा रहे हैं। So the carbocation in which the carbon atom having positive charge is attached with one alkyl group, one R group, or you can say the one carbon atom, that called the primary carbocation. If the carbon atom having the positive charge is further attached with 2 R group, 2 alkyl group, 2 carbon atom, called the secondary carbocation. तो ये secondary carbocation की structure है. Similarly, the carbocation in which the carbon atom having positive charge is attached with 3 alkyl group, 3 R group, or you can say the 3 carbon atom, called the टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो 3 तरह के कार्बोकेटाइन होते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, द टर्शरी कार्बोकेटाइन। अगर हम इनमें स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन उसमें आप देखें जो कार्बन एटम है, जो सेंट्रल कार्बन एटम हम पहले ही बता चुके हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है? sp2। देखो हमने पहले बताया था। और ये sp2 कार्बन CH3 से अटैच है, देखो यहाँ पे, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है? यहाँ पे sp3 है। बोलो क्या है? ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है? यहाँ पे sp3। और ये जो सेंट्रल एटम इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है? यहाँ पे sp2। तो यही कंडीशन होती है आपकी हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस चलने के लिए। और फिर ये देखा जाता है जो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच हो, तो sp3 वाला जो कार्बन उसके ऊपर कितने आपके H है, जिसे अल्फा हाइड्रोजन एटम कहते हैं। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ही हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी, उतना ही पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाएगा। क्योंकि जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब हम हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस चलाते हैं तो उसके दौरान क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन एटम के ऊपर है वो अल्फा जो हाइड्रोजन एटम होते हैं 1 बाय 1 उन पे आता है, कभी एक H पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, एंड thus there occurs the dispersal or the delocalization of the positive charge occur, and that results in the stability in the carbocation. तो मीन्स जो आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है उसके अंदर आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। सेकेंडरी में देखेंगे तो देखो CH3, फिर ये भी CH3, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। टर्शरी कार्बोकेटाइन में देखेंगे तो 3 + 3 + 3, देखो 3 CH3 है, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो 9 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी। पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्पर्सल होगा वो 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम के ऊपर होगा, सो दैट रिजल्ट्स इन द मच मोर स्टेबिलिटी। तो इसलिए टर्शरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन द प्राइमरी वन। सिमिलरली आप इसको इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि जो आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन है उसमें जो CH3 ग्रुप है एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन CH3 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ देगा आपके, तो जिसकी वजह से जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो CH3 की तरफ आ जाएगा, मींस देयर अकर्स द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर इंडक्टिव बेसिस पे आप एक्सप्लेन करें। ऐसे ही आपके जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है उसके अंदर दो प्लस आई इफेक्ट वाले आई ग्रुप लगे हुए हैं, सो दैट ये अपने इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो जो डिस्पर्सल होगा पॉजिटिव चार्ज का और भी ज्यादा हो जाएगा। डिस्पर्सल मींस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज का दूसरे एटमों की तरफ जाना। एक CH3 अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है थोड़े कार्बन एटम की तरफ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो वो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसकी तरफ चला जाएगा। दैट कॉल्ड द डिस्पर्सल, दैट कॉल्ड द डिलोकलाइजेशन ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली टर्शरी कार्बोकेटायन के अंदर आपके तीन प्लस आई इफेक्ट वाले देखो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, दे विल कॉज द मोर डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो द स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी वन। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल हुआ वो कौन हो गया आपका, टर्शरी कार्बोकेटायन। अब हम बात करते हैं कार्बेनायन की। सिमिलरली जो आपने टाइप्स देखी कार्बोकेटायन की, उसी टाइप से आपके कार्बेनायन की भी टाइप है, सेम डेफिनेशन है। जो आपने ऊपर स्ट्रक्चर दिख रही है कार्बेनायन की, उसमें कार्बन के ऊपर तीनों H है, अगर हम किसी भी एक H को हटा के एक R ग्रुप लगा दें, एक एल्काइल ग्रुप लगा दें, जैसे CH3 हमने लगाया, तो वो आपका प्राइमरी कार्बेनायन हो जाएगा। तो डेफिनेशन बताओ क्या बनेगी प्राइमरी कार्बेनायन की, कि द कार्बेनायन इन विच द कार्बन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज is attached with one alkyl group, one R group, or you can say the one carbon atom, that then it is called primary carbanion. Similarly अगर हम एक H को हटा के एक और R ग्रुप लगा दें, एक और एल्काइल ग्रुप लगा दें, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो डेफिनेशन क्या होगी, that is the secondary carbanion, the carbanion in which the carbon atom having negative charge is further attached with two alkyl group, or you can say the two carbon atom, that called the secondary carbanion. सिमिलरली आप टर्शरी कार्बेनायन की स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं, जो एक H और बच गया आप उसको हटा के एक और एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी टर्शरी कार्बेनायन की, कि द कार्बेनायन in which the carbon atom having negative charge is further attached with three alkyl group, or you can say attached with three carbon atoms, called the tertiary carbanion. अगर अब इनकी स्टेबिलिटी को देखें कि इनके बीच स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो स्टेबिलिटी कब होती है, देन व्हेन देयर अकर्स समथिंग डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज। कार्बोकेटायन के केस में हमें डिस्पर्सल पॉजिटिव चार्ज का करना था, लेकिन यहाँ पे कार्बेनायन के अंदर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे डिस्पर्सल किसका होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज का। डिस्पर्सल का मतलब हमने आपको पहले बताया कि कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज दूसरे एटम के ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ पे तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है जिसका प्लस आई इफेक्ट है। प्राइमरी कार्बेनायन में देखें तो वो क्या करेगा, क्या वो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ लेगा, नो, दैट इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये अपने इलेक्ट्रॉन ही कार्बन की तरफ दे रहा है, तो जिसकी वजह से कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मीन स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल रुक जाएगा। सो दैट पॉजिटिव, दैट प्लस आई, इफेक्ट, दैट इज द प्लस आई इफेक्ट CH3 ग्रुप कॉजेज द, क्या करेगा बोलो, ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इट डिक्रीजेस, इट हिंडर्ड द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को हिंडर्ड करेगा, उसको रोक देगा। while in case of the secondary carbanion there are two plus I effect CH3 group, there are the two plus I effect CH3 group, they will further hinder the dispersal of negative charge. Similarly in case of tertiary carbanion there are three plus I effect CH3 group, they will further restrict the dispersal of negative charge, ये नेगेटिव चार्ज के जो डिस्पर्सल है उसको फर्दर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे उसको, दे विल रेस्ट्रिक्ट द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, दे विल हिंडर द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर डिस्पर्सल होगा तो वो किस में होगा, वो आपके प्राइमरी कार्बेनायन में होगा। सेकेंडरी में तो डिस्पर्सल रुक गया, टर्शरी में तो और भी ज्यादा रुक गया, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ आउट ऑफ दीज थ्री कार्बेनायन, द प्राइमरी कार्बेनायन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी देन द टर्शरी कार्बेनायन। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल की। जैसे डेफिनेशन आपकी डिफरेंट जो टाइप्स बनी थी आपका कार्बोकेटायन कार्बेनायन की, ऐसे ही थ्री टाइप्स होंगी फ्री रेडिकल्स की भी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शरी वन। तो जैसे फ्री रेडिकल में कार्बन के ऊपर आपको तीन H दिख रहे हैं और एक और इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर से अगर हम एक H हटा दें और एक R ग्रुप लगा दें, दैट कॉल्ड द प्राइमरी फ्री रेडिकल। so the free radical in which the carbon having odd electron is further attached with
one alkyl group, one carbon atom, then it is called primary free radical. Similarly the secondary free radical, जब आपने एक H और हटा के एक और CH3 ग्रुप देखो लगा दिया, एक alkyl ग्रुप लगा दिया, तो the free radical in which the carbon atom having odd electron is further attached with two alkyl group like the CH3 group here, called the secondary free radical. Similarly the definition of tertiary free radical are the carbon atom having the free radical in which the carbon atom having odd electron is further attached with थ्री एल्काइल ग्रुप, वो तीन एल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो आप उसे क्या कह देते हैं, टर्शरी फ्री रेडिकल। अब ऐसे ही हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, तो जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है, जिसके ऊपर ओड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड हम पहले ही बता चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन उसकी sp2 है। और उस कार्बन से जो CH3 ग्रुप अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो यहाँ पे कंडीशन कंप्लीट हो गई आपकी हाइपर कंजुगेशन की। तो मींस जब हाइपर कंजुगेशन चलेगी उसके लिए एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए, sp3 से अटैच हो, sp3 के ऊपर आपके H होने चाहिए, जैसे CH3 में तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो जो ओड इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन के ऊपर जो अकेला इलेक्ट्रॉन उसका डिस्पर्सल होगा यहाँ पे, तो वो जो अकेला इलेक्ट्रॉन कार्बन के एटम के ऊपर है वो डिस्पर्स होके जो 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, देखो प्राइमरी फ्री रेडिकल के अंदर कभी एक H के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा, कभी दूसरे H पे, कभी तीसरे H पे, इस टाइप से 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगी। The dispersal of odd electron occurs over the 3 alpha hydrogen atom, while in case of the secondary free radical there are 3 alpha plus 3 alpha, total 6 alpha hydrogen atom. So the dispersal of that odd electron occurs over the 6 alpha hydrogen atom, means there occurs a more dispersal as compared to the primary free radical. While in case of the tertiary free radical there are total 3 alpha plus 3 alpha plus 3 alpha, means total 9 alpha hydrogen atom. So the dispersal of that odd electron which is present on the central carbon atom, that dispersal of that odd electron occurs over the 9 alpha hydrogen atoms. So more will be the stability, क्योंकि डिस्पर्सल के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, मोर द डिस्पर्सल मोर द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी बाहर ज्यादा निकल जाएगी, सिस्टम की खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो डिस्पर्सल चाहे पॉजिटिव चार्ज का हो, चाहे नेगेटिव चार्ज का हो, चाहे ओड इलेक्ट्रॉन्स का हो, डिस्पर्सल के दौरान हमेशा ही एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी बाहर निकल जाएगी, खुद की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसलिए हम कहते हैं मोर द डिस्पर्सल ऑफ इधर द पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज और द ओड इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड, सो लेसर विल बी द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड लेसर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, किस हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस किस में ज्यादा चली, टर्शरी फ्री रेडिकल के अंदर, इसलिए टर्शरी फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। तो इसी तरह से आप इसकी एक्सप्लेनेशन आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी बता सकते हैं, जैसे कि हमने कार्बोकेटाइन में एक्सप्लेन किया था। तो मेन लेकिन जो रीजन है अब बेटर यही रहता है कि आप उसको हाइपर कंजुगेशन के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कार्बिन्स, जो आपके सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन, उसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल। तो जो ट्रिपलेट कार्बिन होती है वो मोर स्टेबल होती है सिंगलेट से। सिमिलरली जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है सिंगलेट से, क्योंकि जो सिंगलेट कार्बिन होती है, सिंगलेट जो नाइट्रीन होती है, इन दीज द टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेपरेट ऑर्बिटल्स, दे आर प्रेजेंट इन द सेपरेट और द आपके डिफरेंट बोलो। इन सिंगलेट आपको दिख रहा है द टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। सिंगलेट के अंदर सिंगलेट कम स्टेबल है, क्योंकि सिंगलेट के अंदर दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, सो देयर अकर्स द मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। While in case of the triplet carbene or the nitrine, these two electrons are in unpaired state, so there occurs the minimum electron electron repulsion। तो इसलिए ज्यादा रिपल्शन किस में होती है, तो इसलिए ज्यादा जो रिपल्शन होती है वो सिंगलेट आपके स्टेट में होती है, चाहे वो कार्बीन हो चाहे नाइट्रीन हो, और ट्रिपलेट के अंदर वही रिपल्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जो ट्रिपलेट कार्बीन होती है या ट्रिपलेट जो नाइट्रीन होती है, दे आर मोर स्टेबल देन द सिंगलेट वन। तो इस तरह से आपने डिफरेंट रिएक्शन जो इंटरमीडिएट है उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखी, उनके आपने डिफरेंट टाइप, उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में आपने डिस्कस किया। तो दैट ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। थैंक यू।